So now today we are going to derive the expression for the fringe width. It is a very important topic for your exam purpose in the class 12 CBSE as well as in the MP board. So what is a fringe width? The width between the any two dark and bright consecutive fringe is called fringe width. It is represented by beta. So this is Young's experiment. See that the light S from the source from S1 S2 passes on the screen. XY is a screen and the two dark fringe and bright fringe obtained. The distance, that is displacement, is by, so that the distance between S1 and S2 two slit is 2d and the distance from the screen to the slit is capital D. So path difference between these two, S2A, is equal to S2P, this is S2P minus S1P. So you will find this. Look at their two similar triangle, S1, S2 and A, S1, S2 and A, and P, O and P0. These are two similar triangle, and we know that in the similar triangle sides are in proportional. So the sides are proportional from these two triangles. You will take S2A upon S1 S2, S2A upon S1 S2. Similarly POP upon S2A, right? S2A, P, O and P, right? If we cross multiply now, S2A we are going to find, so S1 S2 into POP upon OP. Now look at the distance between S1 S2, this is 2d, and the distance of P not P is pi, and the distance of O to P is d. So we got here S2A, the path difference 2d into y upon capital D. Now for the nth bright fringe, we know the path difference, we are saying n, so it is by n into 2d upon d is equal to n lambda, right? So we will find the value of by n, this is cross multiply, d upon 2d into n lambda. Similarly we can find for dark fringe. So for the dark fringe, lambda is equal to 2n minus 1, right? Lambda by 2, this is the path difference. So what is the difference between the two consecutive fringe, that is n and n plus 1. So yn, d upon 2d into lambda, just we have done here, and one more n plus 1, this is d upon 2d, n plus 1 into lambda. So the difference between them, beta, is equal to yn plus 1 minus yn. So see that from there I will take this d upon 2d lambda common, so here is n plus 1 minus n, and n is cancelled, so beta is equal to d into lambda upon 2d. This is the derivation for the fringe width, and this derivation is very important for exam purpose. Now some conceptual question also asked from here. If we know that कि यंग्स के एक्सपेरिमेंट को अगर हम, जो यंग्स का ये एक्सपेरिमेंट है वेरीफाई करें हम, तो अगर हम इसको लिक्विड में करें, है ना, वाटर में या एनी अदर हम लिक्विड में करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास इन प्लेस ऑफ एयर के, तो जो फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू द एयर। अगर हम इसको वाटर में, यंग्स के एक्सपेरिमेंट को अगर हम पानी के अंदर करते हैं या कोई लिक्विड लेते हैं, तो जो फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज होगी वहाँ पर। अगर हम वन स्लिट को उसकी क्लोज कर देंगे, जो स्लिट है हमारे पास S1 S2, अगर हम उसे कर देंगे तो जो फ्रिंज है वो ग्रेजुअली क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना, डिक्रीज होते रहेगी जो हमारी फ्रिंज है। तो ये कुछ इसके दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिसको अपन ने यहाँ पर बात किया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान, चुटकियों में आपसे ये डेरिवेशन बन जाएगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस ब्रूस्टर्स लॉ, राइट? सो ब्रूस्टर्स लॉ स्टेट दैट, this is very important question for the MP board as well as CBSE, but this time this is reduced from the 30%. So for MP board it is very important question, very important question. Students, you must prepare this for your exam purpose. So according to the Brewster's law, the polarizing angle IP depends on the refractive index
mu, right? So the angle, the tangent of the polarizing angle IP is to be the refractive index of that surface. That means mu is equal to tan IP. Simple language we can say the refractive index mu is equal to tan IP. That is, IP is angle of polarization. So see that this is unpolarized light, the normal between them is IP angle, and this is polarized light. So AOP and AOB, the angle is IP, and now this is refracted in the direction. So this is partially polarized and the angle is R. So I use the concept में जो ब्रूस्टर का लॉ है म्यू इज इक्वल टू 10 IP, उसी को यूज करूंगा यहाँ पर. सो म्यू इज इक्वल टू 10 IP. आई हैव इक्वेशन 1. ये कौन सा लॉ है? ये ब्रूस्टर का लॉ है. अब हमने यहाँ पर रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स का लॉ पढ़ा हुआ है. तो स्नेल का लॉ क्या है हमारे पास? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, बट दिस इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, सो आई विल राइट दिस पोलराइजेशन IP. ये क्या हुआ? इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करते हो तो tan IP इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. अब हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो tan थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे. अब यहाँ एंगल थीटा क्या है? IP. तो देखो दोनों जगह पर IP लिखा. साइन IP कैंसिल, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो cos IP इज इक्वल टू साइन आर मिलेगा. अब हम इसको 10th वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लेंगे. 90 माइनस आर, कॉस बना लेंगे, कॉस कॉस कैंसिल, सो IP इज इक्वल टू 90 माइनस आर. इसका ट्रांसपोज किया हमने, IP प्लस आर इज इक्वल टू 90. तो हमारे पास जो एंगल AOB है, पोलराइजिंग एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस IP प्लस आर. सो वैल्यू ऑफ IP प्लस आर इज 90. सो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90. दैट इज tan थीटा. ओके, टेंजेंटियल और टेंजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू tan IP. तो ये ब्रूस्टर का लॉ, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हम ये वेव ऑप्टिक चैप्टर में रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस निकाल रहे हैं हाइगन्स की थ्योरी को यूज़ करते हुए. हाइगन्स ने जो थ्योरी दी थी, अपनी वेवलेट थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एवरी पॉइंट ऑफ द मीडियम ऑन ए गिवन वेव फ्रंट is a center of originating a new disturbance of wave, and this new disturbance is called the secondary wavelet. ओके, तो इस सेकेंडरी वेवलेट के लिए हम जो है निकाल रहे हैं. सेकेंडरी वेवलेट में आपने देखा है कि ये वेव का जो डायग्राम दिया था हाइगन ने अपने सेकेंडरी प्रिंसिपल पर, तो ये वाइब्रेशन का कुछ ऐसा डायग्राम यहाँ पर था हमारे पास. ये A, B और C हम इसे लेते हैं, A, B, C, D. तो ये वाइब्रेशन जो हमने देखा था कि ईच पॉइंट पर जो ओरिजिनेट हो रहा था, तो ये हमारा किसके लिए था? स्पेरिकल वेव फ्रंट के लिए. स्पेरिकल, SPERICL, स्पेरिकल के लिए उन्होंने कहा था. और ये अगर हम देखते हैं तो अपने सेकेंडरी वेवलेट में उन्होंने प्लेन वेव फ्रंट के लिए कहा था. इसे सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल या सेकेंडरी वेवलेट भी कहते हैं. किसकी? हाइगन की. तो ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन वेव फ्रंट है हमारा. तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए भी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस सेकेंडरी वेवलेट के यूज से ही हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन बता रहे हैं. हाइगन्स के लॉ को, स्नेल्स के लॉ को हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं. तो हमने मान लिया Z डैश हमारे पास एक बाउंड्री सरफेस है जिस पर एक इंसिडेंट रे वेव फ्रंट जो है, AB वेव फ्रंट हम जिसे बोलेंगे, तो AB वेव फ्रंट जो है वो इंसिडेंट होता है. और BA डैश अगर आप इसमें देखेंगे तो BA डैश राइट से निकल कर जा रहा है हमारे पास. तो ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास A डैश है. ये जो पॉइंट है हमारे पास क्या है? A डैश का पॉइंट है. तो अगर हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा स्पीड दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो उसी का यूज करके हमने फॉर फर्स्ट प्लेन, फर्स्ट वेव फ्रंट दैट इज ए V1t राइट, इस फॉर्मूले से, और सेकंड के लिए V2t ये यहाँ पर बनाया है. तो स्नेल का लॉ अगर हम पढ़ते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. तो हम साइन आई की एक ट्रायंगल से वैल्यू निकालेंगे. हमारे पास ए ट्रायंगल A B A डैश है. साइन क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हम इससे निकालेंगे, ये देखिए आप वैल्यू निकाली हमने। फिर आर की वैल्यू के लिए हमारे पास दूसरा ट्रायंगल मिल रहा है ए डैश, ओके, और हमारे पास जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा हमारे पास बी डैश। तो इसमें हम जब जाएंगे तो फिर से हमारे पास परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होगा। जब हम दोनों वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, ए डैश को कैंसिल करेगा। तो वी ए की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या निकाली थी, V1t दिस डिस्प्लेसमेंट, एंड फ्रॉम हियर V2 की जो वैल्यू है हमारे पास बी ए डैश की वो क्या है हमारे पास V2t, राइट, ए बी डैश जिसको हम बोलेंगे। तो अब जब ये दोनों वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो दोनों वैल्यूज़ पुट करने के बाद t से t कैंसिल करेंगे तो V1 अपान हमारे पास क्या जाएगा V2, मतलब कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू फॉर द फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए कांस्टेंट। तो ये वेरिफिकेशन किया हमने रिफ्रैक्शन एट ए प्लेन सरफेस पर बाय हाइगन्स के प्रिंसिपल को। और हाइगन के कौन से प्रिंसिपल को यूज़ किया हमने, सेकेंडरी वेवलेट के। सेकेंडरी वेवलेट में हाइगन ने क्या कहा था कि अगर एक डिस्टरबेंस कॉज होता है वेव फ्रंट पर तो वहाँ से एक नई वेव जो है वो ओरिजिनेट हो जाती है उसके सेंटर से, ठीक है ना। तो यही प्रिंसिपल क्या कहलाता है, हाइगन का सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल कहलाता है। बहुत आसान तरीके से हमने निकाला है, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये फटाफट बन जाएगा आपको। तो कंटिन्यू हमारी वीडियो देखते रहिए और इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस वेव ऑप्टिक चैप्टर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पर आप देखें। तो हाइगन्स का वेव थ्योरी जो है वो 1678 में दिया गया, और हाइगन ने जो कहा कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, हाइगन क्या बोल रहे हैं, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, जबकि न्यूटन ने कहा था पार्टिकल्स के फॉर्म में चलता है। तो ये कह रहे हैं कि वेव के फॉर्म में चलता है। और इनिशियली द लाइट वेव वर एज्यूम्ड टू बी अ लॉन्गिट्यूडनल, पहले लाइट वेव को लॉन्गिट्यूडनल माना था, लेकिन बाद में जो फिनोमेना थी पोलराइजेशन की फिनोमेना के बाद लाइट वेव को एज ए ट्रांसवर्स इन नेचर में माना गया। फिर जो वेव ट्रेवल करती है इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो हाइगन क्या कह रहे हैं कि जो भी वेव चलती है वो कैसे चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, मतलब स्पीड की लाइट। तो स्पीड जो है लाइट की स्पीड से जब चलती है तो c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये किसकी स्पीड होती है, लाइट की स्पीड। तो इस स्पीड से जो है वेव चलती है, हाइगन अपनी थ्योरी में बता रहे हैं। द वेव्स ऑफ द लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर हैव द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कलर अगर आपके पास है तो डिफरेंट कलर के लिए जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी, है ना। रेड कलर के लिए फ्रीक्वेंसी लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ना, वॉयलेट की शार्टेस्ट है। तो सभी के लिए अलग अलग होती है। तो ये बात वेव थ्योरी में हाइगन अपने इसको प्रपोज कर रहे हैं, हाइगन बता रहे हैं। फिर यहाँ पर जो है वो हम बात करते हैं वेव फ्रंट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट में क्वेश्चन भी आपको जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेव फ्रंट क्या है कि अ सरफेस ड्रॉन एट एनी इंस्टेंट इन द मीडियम अफेक्टेड बाय द वेव ओरिजिनेटेड, ओके, ऑन ईच पार्टिकल वाइब्रेट इन द सेम फेस, ठीक है ना। जो वेव ओरिजिनेट हो रही है तो उसमें ईच पार्टिकल वाइब्रेट होता है सेम फेस पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट जो है वो 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट को अगर हम यहाँ डिफाइन करेंगे, ये बनाने को भी आता है, 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी डेफिनेशन के ये आता है। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या है कि इफ द सोर्स इज एट इन्फिनिटी, सोर्स कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर। यही पॉइंट आपको नोट करना है, सोर्स अगर आप इन्फिनिटी पर है तो उससे आने वाली जो वेव्स रहेंगी वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। तो इस तरीके का जो वेव फ्रंट होगा हमारा, वो कौन सा वेव फ्रंट हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। फिर दूसरा जो बताया है, जो सेकंड वेव फ्रंट होता है वो है हमारा स्फेरिकल। सेकंड कौन सा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल, SPHERICAL, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या है कि इफ देयर इज ए पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, कैसा सोर्स होना चाहिए, पॉइंट सोर्स, और कैसा होना चाहिए,
फाइनाइट डिस्टेंस पर होना चाहिए, तो उससे जो वेव ओरिजिनेट होंगी वो हमारा कहलाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, और इस पॉइंट सोर्स से जो निकलने वाली वेव है जो ओरिजिनेटेड हो रही हैं, ये क्या कहलाएंगी, हमारी स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी ये, राइट है। और थर्ड जो ऑर्डर है, तीसरे प्रकार का 3 नंबर पर जो आता है वो है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए भाई यहाँ पर बहुत ही अच्छी है कि अगर हमारे पास जो सोर्स है, इफ द सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्लिट, ओके, तो कैसा होना चाहिए, स्लिट, और कैसा होना चाहिए, एट फाइनाइट डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो फाइनाइट डिस्टेंस पर हमारे पास एक स्लिट रखी हुई है, तो हमारे पास जो वेव फ्रंट ऑब्टेन होगा वो कौन सा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। इसमें सिलेंडर्स बनेंगे ना, सिलेंडर्स बनाना आता है ना आपको, ये सिलेंडर्स होते हैं कुछ इस तरीके से, आप जो बनाते हैं ना सिलेंडर, ये बनाया आपने, ये सिलेंडर हुआ, तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेव फ्रंट 3 प्रकार के हैं, प्लेन वेव फ्रंट है, अगर सोर्स हमारा फाइनाइट पर है तो वो प्लेन होगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट है, पॉइंट सोर्स है हमारे पास लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पर है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में स्लिट है लेकिन एट फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये तैयार जरूर करना है। फिर हम बात करते हैं सुपरपोजिशन की। सुपरपोजिशन दैट मीन्स बाय इज इक्वल टू ऑल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, राइट, डैश 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 बाय एन, मतलब इनके इंडिविजुअली जो डिस्प्लेसमेंट का सम है वो y के बराबर मिलेगा। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये आपको एक बार अच्छे से याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।